Okay, so let us start with next question. Question number 6. Ratio of magnetic field at the center of a current carrying coil of radius r and at a distance of 3r on its axis is. So आपको याद होगा, you have seen, you have derived formula for magnetic field at the center. आपको याद होगा, at the center it was mu 0 by 2 I by r, and at any point on the axis at a distance x, it is b axis, which is equal to mu 0 by 4 pi. अब पता होना चाहिए, you have to know this, I r square upon r square plus x square raised to 3 by 2. ये पता होना चाहिए. At any point on the axis you have this formula for magnetic field. अब इन दोनों को डिवाइड अगर कर देते हो, if you divide these two, so what you will get is b center by b axis equal to, डिवाइड करने के बाद mu 0 by mu 0 cancel, I cancel. Okay, only thing is you need to remember कि यहाँ पे पाई था कि नहीं, ये गलत तो सब गलत, और यहाँ पे 4 था कि 2 था, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस. यहाँ 4 पाई लिख रहे हो तो यहाँ पे 2 पाई आएगा. यहाँ पे अगर सिर्फ पाई लिख रहे हो, नीचे 4 है तो ऊपर 2 आएगा, अदरवाइज इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो गलत फॉर्मूलाज नहीं चलेंगे. व्हेन यू डिवाइड, so mu 0 I by 2 will cancel out. So mu 0 I by 2 and mu 0 I by 2 will cancel out. ऊपर बचेगा 1 by r, तो ऊपर आएगा आपके पास 1 by r अपॉन डिनोमिनेटर में r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3 by 2. इसको ऊपर लेके जाओगे और ये r और r स्क्वायर कैंसिल नहीं करना है. 1 by r और नीचे r स्क्वायर r क्यूब बनेगा. Therefore you will have b center by b axis equal to, तो ये आपके पास आएगा b center by b axis equal to r square plus x square raised to 3 by 2 upon r cube. अगली बार से ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, because if you remember this, आगे देखोगे the questions will be easy. अब आपको बोला है रेडियस कितना r, ओके, x कितना है 3r, तो you will be writing here r square plus 3r का स्क्वायर 9r square upon r cube raised to 3 by 2. Now r square plus 9r square is 10r square. Therefore b center by b axis is equal to 10r square raised to 3 by 2 upon r cube. ये आएगा 10 raised to 3 by 2, r square raised to 3 by 2, 2 cancel upon r cube, ये और ये भी कैंसिल हो गया. तो 10 raised to 3 by 2, 10 का क्यूब 1000, 1000 का रूट 10 रूट 10, तो 10 रूट 10. ऑप्शन नंबर ए डन. Next question. This question is oral. If you remember, I told you a trick. तो आपको बताया है a wire of fixed length is turned to form a coil of 1 turn. तो initial number of turns N1 is 1. So initial number of turns N1 is 1. It is again turned to form a coil of 3 turns. N2 equal to 3. आपको याद होगा हमने एक small n define किया था, N2 by N1, that is 3 now, right? If in both the cases same amount of current is passed, current is constant, then the ratio of intensities of magnetic field produced at the center of the coil will be, आपको याद होगा मैंने एक ट्रिक बताया था इस केस में, n square times of b1, so 9 times of b1. That is option number A. Simple question. Next question. Good. Two infinite length wires
carries current of 8 ampere and 6 ampere respectively, and they are placed along x and y axis. Magnetic field at a point 0, 0 D important. एक वायर along x axis है, दूसरा वायर along y axis है, और फील्ड z axis पे पॉइंट है, वहां निकालना है. तो here first of all you should draw axis, क्योंकि this is really important to draw axis at the first place. तो सबसे पहले ये आपका x axis हो गया, इसको मैं z बोल देता हूं, तो मुझे y डिसाइड करना है. आई कैन टेक इट आउट और आई कैन शो इनसाइड, एक ही बात है. मैं अगर ऐसे दिखाता हूं प्लस y तो माइनस y अंदर की तरफ, मैं ऐसा प्लस y दिखाता हूं तो माइनस y इस तरफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको आप x बोल दो, इसको आप y बोल दो, और इसको आप z बोल दो. आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है? z एक्सिस पे, P 0, 0D. इसका मतलब इस P पॉइंट का x एक्सिस से और y एक्सिस से डिस्टेंस है D. Any point on the z axis means equal distance from x and y. So x से भी D और y से भी D. अब आपको बोला है एक वायर जिसमें 8 एम्पियर करंट है, वो है along x axis. So there is a wire something like this which is along x axis and it carries a current of 8 ampere. तो ऐसा कुछ है. So you have this wire which is carrying a current of 8 ampere. तो इसमें 8 एम्पियर का करंट है. और एक दूसरा वायर है जिसमें 6 एम्पियर का करंट है, और वो दूसरा वायर जो है इट इज अलोंग y एक्सिस. सो इट इज अलोंग y एक्सिस समथिंग लाइक दिस. ओके, तो ऐसा एक दूसरा वायर है. मैं इसको लेबल कर देता हूं. इसको मैं बोल देता हूं वायर नंबर 2 एंड इट कैरी द करंट ऑफ 6 एम्पियर. इसको मैंने बोला है 8 एम्पियर करंट है, वायर नंबर 1. ओके, imagination you will need now. Then obviously आपको याद होना चाहिए magnetic field due to a long straight wire carrying current I at a distance a is mu 0 by 4 pi 2I by a. mu 0 by 4 pi 2I by a. तो जनरल इक्वेशन में पहले लिख देता हूं. जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यू शुड नो. ए डिस्टेंस पे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड होता है म्यू 0 बाय 4 पाई 2 आई बाय ए, या तो म्यू 0 बाय 2 पाई आई बाय ए. ओके, गुड. देन B1 विल बी इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई 2 I1 बाय डी, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? डी है. पहली वायर से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना? D, तो D. दिस इज इक्वल टू म्यू 0 बाय 4 पाई 2 I1. व्हाट इज I1? व्हाट इज करंट हियर? 8 A अपॉन D. 1 जा एंड 2 जा, 2 जा 4, तो 4 म्यू 0 बाय पाई D. ये मिल गया पहले का फील्ड P पॉइंट पे. देन अगेन दूसरे का फील्ड B2 mu 0 by 4 pi 2I2 by D. mu 0 by 4 pi 2I2 कितना है? 6 एम्पियर. 6 एम्पियर by D. ये आ जाएगा आपका ऑफ कोर्स ऊपर 12 नीचे 4, तो 3, तो 3 mu 0 by pi D, राइट. तो B1 is 4 mu 0 by pi D and B2 is 3 mu 0 by pi D. So total is -1. -1 marks. If you say 7 mu 0 by pi D, direction, ध्यान रखना magnetic field का direction. You have to remember right hand thumb rule. If you imagine this long straight wire to be held in your right hand with thumb outstretched and fingers curled, if thumb gives you direction of current, then fingers wire number 1, current is along x. अब थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर इस बोर्ड को मैं
एक ये वाला साइड में x लेता और ऊपर में z लेता, तो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, if I take this as x axis, this as z axis, तो y is coming towards u, तो पहली जो वायर थी वो कहां थी, along x, तो thumb is direction of current and fingers, तो z एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, मतलब कौन सी तरफ, y एक्सिस की तरफ, तो x डायरेक्शन में करंट होगा तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, y, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, y, तो याद रखना यहाँ पे अगर x के अलोंग करंट है तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अलोंग y, और ये y मैंने स्पेसिफाई करके रखा है, दिस इज y, तो इस ग्रीन लाइन को पैरेलल, ये पहले का फील्ड है B1, राइट। नाउ अगर वायर y डायरेक्शन में है, if the wire is let us say coming out from this plane of board and current is coming out from the plane of board and field आपको फाइंड करना है z एक्सिस पे, तो कर्ल फिंगर्स towards minus x, okay, but in short towards x, minus x या फिर plus x, but towards x, तो सेकेंड वायर का जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा टुवर्ड्स x, x एक्सिस को पैरेलल, ओके, तो ये आ गया B2, y एक्सिस और x एक्सिस में एंगल कितना बनता है, कितना, 90, मतलब B1 और B2 में एंगल कितना है, 90, क्योंकि एक फील्ड है अलोंग y और दूसरा है अलोंग x, तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो यू कैन से, यहीं पे मेंशन कर दो, यहां बोल दो, इट इज अलोंग, दिस फील्ड इज अलोंग, B2 इज अलोंग x, B2 इज अलोंग x, मतलब लिख दो I कैप, और B1 इज अलोंग y, मतलब J कैप, और ये दोनों होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर, that is why therefore you should know resultant will be under root of B1 square plus B2 square plus 2B1 B2 cos of theta, लेकिन ये है पाई बाई 2, क्योंकि एक है x एक्सिस का डायरेक्शन, एक है y का, x और y में एंगल कितना, 90, cos ऑफ 90 कितना, 0, इसके लिए हम ये नहीं लिखने वाले, तो ये याद रखना, दैट इज व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू राइट दैट थिंग, so always remember this, क्लियर, यहां तक क्लियर, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ B1 was μ04 upon pi d इसका स्क्वायर प्लस 3 μ0 by pi d का स्क्वायर, इसमें से μ0 by pi d होल स्क्वायर कॉमन, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर, अंदर आपके पास बचेगा, क्या बचेगा, 25, मतलब आएगा 5 μ0 by pi d, ऑप्शन नंबर D, so this is how you are supposed to solve this question. Next question. A circular current carrying coil has a radius r, the distance from the center of the coil on the axis where the magnetic induction will be 1/8 of its value at the center. क्या बताया है पहले समझ लो, आपको बोला है आपके पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है जिसका रेडियस r है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस, मतलब x, यू सी x, तो x पूछा है कितने x पे axial magnetic field will be equal to 1/8 of the central magnetic field. This is what they are asking you. They are asking what is x. So therefore, B center upon B axis equal to 8. B center by B axis मैंने अभी बताया था. Do you remember r square plus x square upon r raised to 3/2 upon r cube. तो ये आएगा आपके पास therefore r square
plus x square raised to 3/2 upon r cube equal to a। यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब, ये भी 2 का क्यूब, तो क्यूब रूट ले लो। तो टेकिंग क्यूब रूट, so you will have r square plus x square, क्यूब रूट ले लिया तो 3 तो गया, लेकिन 1/2 रहेगा अपॉन r। ये 8 का क्यूब रूट इज 2। This is what you will have, and therefore this will be, अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो मैं स्क्वायर ले लूंगा, तो टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर, तो therefore you will have r square प्लस x square, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल आउट हो गए, नीचे अपॉन r का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, therefore r square plus x square equal to 4r square, therefore x square equal to 4r square minus r square is 3r square, therefore x equal to root 3 times of r, so root 3 times of r are root 3, option number B. Next question. Two particles of equal charges after being excited through the same potential difference enter in a uniform transverse magnetic field and describe circular path of radius r1 and r2, then the ratio of their respective masses is। अब ऐसे क्वेश्चन में एक छोटा सा आप ट्रिक समझ लो, ऐसे मतलब जिस क्वेश्चन में कुछ पैरामीटर्स कांस्टेंट दिए, क्या बोला है, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल चार्जेस, तो साइड में लिखते जाओ कि कांस्टेंट्स क्या क्या है, क्योंकि दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चन इजीली। एक चार्ज कांस्टेंट है आफ्टर बीइंग एक्साइटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ऐसे डिनोट करूंगा कैपिटल V के साथ, वो भी कांस्टेंट है क्योंकि चार्जेस आर मूविंग, तो वेलोसिटी भी आ सकता है इक्वेशन में, तो कैपिटल V इज फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। दे एंटर यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली ये केस साइक्लोट्रॉन का ही हो सकता है। इफ यू रिमेंबर साइक्लोट्रॉन में जो 2 डीज थे हमारे पास, वी हैड 2 D shaped hollow metallic boxes, D1 and D2। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड हियर इज परपेंडिकुलर। आपको याद होगा, याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल अलग है और मैग्नेटिक फील्ड का रोल अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाता है, और अगर आपको याद होगा तो हमने ये 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा है। बाय द वे, अगर मैं एक चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस 2 प्लेट्स के बीच में रख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस इज V, दैट चार्ज स्टार्ट्स मूविंग एंड work done on this charge is given by Q into V, and this QV appears as kinetic energy। तो ये पता होना चाहिए, तो ये पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे you should know kinetic energy for motion is provided by work due to electric field, और ये है ½ mv², ये है Q into potential difference, नहीं तो एक भी और एक भी कैंसिल कर दोगे, one is velocity, other is potential difference। Good. Then why I am doing all this? Q constant, potential difference constant, R का information R1 दिया है, R2 दिया है, और ratio of masses पूछा है। मतलब ultimately what we want here is to make a relation between M and R। ये हो गया। अब यहां से you can get V² equal to 2Q capital V upon M mass। okay, so V equal to under root of 2Q capital V by M, correct? यहाँ तक क्लियर? अब obviously Q constant, V constant, तो velocity depends on mass, लेकिन it is inversely proportional to root of mass, मतलब therefore velocity is proportional to 1 by root of m, equation number
1। देन इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो काम था वो हो गया। अब है रोल मैग्नेटिक फील्ड का। मैंने आपको पहले ही बताया था मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल लिमिट होंगे उसको सर्कुलर मोशन में सेट करने का काम करेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का अपना रोल अलग है यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv² by r इक्वल टू दिस इज q v, दिस v इज वेलोसिटी, तो ये v पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, दिस वेलोसिटी v इज q v v sin थीटा, लेकिन थीटा इज 90। वेलोसिटी को फील्ड परपेंडिकुलर है, उन्होंने पहले ही बता दिया ट्रांसवर्स, sin 90 इज 1, इसलिए मैंने लिखा नहीं है वहां पे। ये और ये हो गया कैंसल। अब यहां से यू सी v is equal to QBR by M, right? Q constant, B constant, तो V is proportional to R by M, बराबर। गुड, इज दिस क्लियर है ना? देखो दो चीजें हैं, या तो फिर एक काम करो, अगर ये तुमको हेवी जा रहा है तो फिर मैं बताऊंगा कि इक्वेशंस में ये v के, ये जो v है यू हैव टू सब्स्टिट्यूट फॉर दिस v ओवर हियर, वैसा भी कर सकते हो। अगर प्रोपोर्शनलिटीज आपको अच्छे से नहीं जम रहा है तो देयर आर अदर वेज आउट, लाइक हटाओ इसमें, डोंट राइट दिस, यू हैव v इक्वेशन, यू हैव v हियर आल्सो। अगर ये भी v है ये भी v है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू कैन से, from equation 1 and 2 you can say under root of 2q potential difference by mass equal to qbr by m, right? अब q constant, q constant, v constant, q constant, b constant, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1/√m प्रोपोर्शनल टू r by m, मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू m/√m, मतलब r² अगर करना हो तो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो से r इज प्रोपोर्शनल टू √m। गुड, √m है ना, m/√m is √m, good. So therefore you can say r² is proportional to m, therefore m is proportional to r², therefore m1 by m2 is r1 by r2 का स्क्वायर। सिर्फ इन्होंने स्मॉल की जगह पे कैपिटल लेटर्स यूज किए हैं, इन्होंने रेडियस को कैपिटल R1 और कैपिटल R2 बोला है। तो रेशियो ऑफ मास विल बी R1 by R2 ब्रैकेट स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। Next question. A proton is accelerating on a cyclotron. Good. Again the same question. Having frequency, oscillating frequency of 11 megahertz in external magnetic field of 1 Tesla. If the radius of its d is 55 centimeter, then its kinetic energy in million electron volt is. अब ऐसा है, आपके पास एक प्रोटॉन है which is accelerating in a cyclotron with a frequency of 11 megahertz। तो वो जो Ds को हम अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करते हैं, जो पोलैरिटी चेंज करता है प्लस माइनस, तो उसका फ्रीक्वेंसी n या फिर f, इट इज 11 megahertz। ओके, देन एक्सटर्नल फील्ड कितना, 1 टेस्ला, रेडियस ऑफ डी r कितना, 55 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में कन्वर्ट कर लिया। काइनेटिक एनर्जी आपको पूछा है, आपको याद होना चाहिए हमने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला बनाया था साइक्लोट्रॉन के केस में, और वो फॉर्मूला था q² b² r² by 2 times of m। ये हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा हुआ है, q² b² r² by 2m। देन
आपके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, E है। ओके, तो ये आ जाएगा E स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2m। दिस इज इन जूल्स। नाउ आपको आंसर में पूछा है इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, बाद में मिलियन करेंगे। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय, अरे कैलोरीज नहीं पूछ रहा हूं मैं, जूल टू ईवी पूछ रहा हूं। जूल टू ईवी इज डिवाइड बाय ई, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज येट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जूल से जब आप ईवी में जाते हो, जूल से जब ईवी, तो ई तो यहाँ पे ई, ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो जूल से ईवी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय ई, ये ई और ये ई कैंसल हो गया, और ये आर स्क्वायर मैंने लिखा नहीं तो लिख देता हूं यहाँ पे आर स्क्वायर। ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, बी स्क्वायर 1 स्क्वायर, 55 का स्क्वायर 55 स्क्वायर, एनी नंबर एंडिंग विथ 5 का स्क्वायर 3025। जिसको नहीं पता 55 का स्क्वायर, तो पहले 5 स्क्वायर लिख लो, 5 का अगला नंबर 6, उसको 5 और 6 को मल्टीप्लाई करो 3025, और मीटर में कन्वर्ट किया था आपने तो वो भूलना नहीं, 3025 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये हो गया पूरा यस, अपॉन 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27, ये और ये गया रफली रफली 1.6 और 1.67 को उड़ा दिया, कैंसल रफली रफली। अब ये देखो क्या है, 10 पावर माइनस 19 और माइनस 4 मतलब कितना, माइनस 23, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस 27, मतलब 10 पावर कितना 4। तो आपके पास 3025 by 2, how much, 1500, गुड, ठीक है, 1500 अप्रोक्सीमेट इंटू 10 पावर 4, 15 into 10 power 6 electron volt, but 10 power 6 is million, so 10 power 6 is million, so million electron volt approximately, so 14.89 million electron volt. So this is how you are supposed to do calculations. So we'll stop at this question for today. We'll continue with more in the next session.